कॉन्सेप्ट तो एक ही है, बस वो डिफरेंट फीलिंग देने के लिए आई एम डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 100 hours and 80% learning curve is known to apply. The average time per unit for the first 16 units, the average time per unit for the first 25 units, and the time it takes to make the 20th unit. Rosalind, you will answer. What we will be doing? How can we solve this? We have to calculate first for the first batch 80%. How we will do that? How we will do that? So for each batch, 1 unit of product is we are producing, right? ये पे मतलब यहाँ पे ये तो मेंशन नहीं किया है ना कि लॉट वाइज है. लॉट वाइज नहीं है. You are not producing 5 or 10 or 20 or 50 units together. You are producing the product one by one. That's okay. Then? Yeah, so 16 units, so we need to take that, I think that exponential value of वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो डाल के करना है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है. अमित जैन जी, क्या करना है, आपको क्या लगता है? मिस्टर अमित जैन. अमित जी, आप इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन हो? आर यू देयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन? अंकित श्रीवास, आप बोल सकते हो? Ankit Srivas, can you say? Simran Ray. Simran, can you say what should be done? Yes, sir. बोलिए मैम, बोलिए. Sir, for first unit it takes 100 hours. So for second unit it will take 80 hours. Okay. And likewise for fourth unit. मैं आपके लिए कैलकुलेटर हूं. 80 into 80%, 64 hour. Then? Then for eighth unit it will take 64 into 80%. That will be coming 6 8 ja 48 and 4 8 ja 32. 51.2 hour. Then for 16th unit it will take 51.2 into 80%. 5 8 ja 40 and 12 8 ja 48. I think 40.48 hours. Yes, तो क्या ये आंसर हो गया ए का? yes, sir, because it asks for average time. So this 40.48 you are saying average time per unit. Yes, sir. Okay, thank you ma'am. हम लोग in the last class we discussed whenever we apply learning rate, that is 80%, 70%, 90, whatever is given in the question, वो learning rate is going to give you average time for all the units. Whether you apply the formula for exponential y equals to a into x to the power b, or whether you don't apply the formula, you will need to apply the formula in one case, when the question is not asking double, because the time will be 80% exactly when the cumulative output will be double. So since they are asking 16 units, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64, if the question is asking double, then in that case you don't need to apply any formula, any exponential. And in most of the exams, ACCA, CIMA, CPA, CMA US, Indian exams, any exams, every course learning curve is there. They ask the questions which does not require exponential calculation, because in an exponential calculation also you need to build your concept. मान लीजिए उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, बट दिमाग तो पहले लगाना होगा ना. तो यहां 16 यूनिट्स के लिए एक्सपोनेंशियल की जरूरत नहीं है. ये डबल में आ रहा है. हर बार जब क्युमुलेटिव आउटपुट विल बी डबल, देन एवरेज टाइम पर यूनिट विल बी 80%, 80%, 80%, 80%, because learning rate is 80%.
but the 80% is not giving you time for next unit. The 80% will give you average time for all the units. तो जब आप फर्स्ट यूनिट में 100 आवर लगा रहे हो, डबल 1 to 2, then 100 into 80%, 80. That is not 80 is the time for second unit. That is first and second दोनों का मिला के average time per unit 80 hour. Again you will make the output double 2 to 4. तो 4 units होने से again it will be 80 का 80% 64. That is not the time of fourth unit. That is the time of all the 4 units in average. Obviously the second unit time is less than 100. The third unit time is less than the second one. The fourth unit time is less than the third one. But the learning rate is giving you average time per unit for all the cumulative units. You will say why? The world has experienced this in last 100 plus years. Since the Second World War, when the first time this concept was realized, even though this was there earlier, but उस समय सोचा गया और 100 सालों में लोगों ने ये पाया है. तो हम लोग 100 सालों का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है उसको हम एक मेथड से समझ रहे हैं. और दुनिया में 100 सालों में करोड़ों लोगों ने ऐसा किया वर्ल्ड में, तो इसको एक नियम बना लिया गया. बस आपको एक पता लगाना है कि लर्निंग रेट आपके जॉब में है क्या. 80% है, 90% है, 95 है, 65 है, क्या है वो देखना. वो हमारा काम नहीं है. वो इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर जो काम कर रहे हैं उनका है, हमारा काम वो नहीं है. वो आपको सब में दिया रहेगा. तो 16 यूनिट्स के लिए कोई कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत नहीं है, सिंस इट इज डबल डबल. सो 1 का 100, 2 का 100 इंटू 80%, 80 दोनों का मिलाकर, 4 का 80 इंटू 80%, 64 चारों का मिलाकर एवरेज टाइम पर यूनिट. तो कितना बार आपको 80% करना होगा? 100 इंटू 80% 2 यूनिट के लिए, इंटू 80% 4 यूनिट के लिए, इंटू 80% 8 के लिए, इंटू 80% 16 के लिए. तो 16 यूनिट्स का 80% करना है कैलकुलेटर में. 100 इंटू 80%, इंटू 80%, इंटू 80%, इंटू 80%, 4 बार. मैंने मुंह से कैलकुलेट किया 40.48. आपको कोई मुंह से कैलकुलेट नहीं करना है और कहीं लिखना भी नहीं है. एग्जाम में लिखने का टाइम ही नहीं है. यू जस्ट यूज योर कैलकुलेटर, इंटू 80%, इंटू 80%, इंटू 80%, इंटू 80%. आपको मिलेगा एवरेज टाइम पर यूनिट, दैट इज 40.96. हर एक यूनिट बनाने का 16 यूनिट्स तक एवरेज टाइम 40.96. बट 1 से लेकर 16 यूनिट्स, हर एक यूनिट का टाइम अलग है. द फर्स्ट यूनिट इज टेकिंग 100, second unit will take less than 100, third unit will take less than the second one. हर का टाइम कमती होते जाएगा. That is learning curve. But learning rate will give you average time per unit. They are asking 16 units का average time per unit निकालिए. दूसरा क्वेश्चन बोल रहे average time per unit for first 25 units. Now it is not falling in double because 16 के बदले आपको क्या करना होगा? 32. They are not asking for 32 units. अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. सो फॉर्मूला क्या था? y equals to a into x to the power b. A is the time for first unit 100 hour into x. X is the number of cumulative units which is 25 to the power b. बोलेगा सब में तो b दिया नहीं है सर, आपने बोला था देंगे. सर ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है. एग्जाम में बी का वैल्यू हर एग्जाम में एसीसीए, सीमा, सीएमए, सीपीए सब में दिया रहेगा. आप वैसे मत सोचिए सर नहीं दिया तो, अरे नहीं होगा ऐसा. सो आई सेड बी मतलब होता है लॉग ऑफ लर्निंग रेट लॉग 80% डिवाइडेड बाय लॉग 2. वैसे आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग का बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे, लॉग 80% लिखेंगे, लॉग 0.8, फिर डिवाइड करेंगे, फिर से लॉग 2 लिखेंगे, आ जाएगा. बट नहीं निकालना है. इवन दो यू आर हैविंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, नॉट रिक्वायर्ड. इन एग्जाम बी विल बी गिवन. मेरे को बी याद है बिकॉज मैं 20-25 सालों से पढ़ा रहा हूं. मेरे को log 80% बाई log 2 याद है. ये क्यों है? बिकॉज 80% विल बी देयर व्हेन द आउटपुट विल बी डबल. एवरी डबल आउटपुट विल गिव 80% टाइम, इसलिए log से निकालना है. log 80% बाई log 2.
log 70% by log 2, log 90% by log 2. Exponential, when the changes are very fast, the calculation in the world can be done only by log, only by exponential calculation. So आपको log 80% by log 2 नहीं निकालना है, but that will be coming minus 0.3219. That will be coming minus 0.3219. तो आपको करना है 100, that is A, into 25, that is X, to the power minus 0.3219. कैलकुलेटर में ये सॉल्व करना होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में 25 to the power minus 0.3219, the whole thing into 100. इससे भी क्या आएगा? Average time per unit. But it is not becoming 80% because it is 25 units. If it is 32 units, it will be again 80%. But कुछ तो कम होगा ना, तो आपको इससे भी क्या मिलेगा? For 25 units, average time per unit. For 25 units, average time per unit. जो आपने A में निकाला, which was done by double, B में double से नहीं होएगा. B में you need to use the exponential calculation because 25 units does not fall in double. But A और B दोनों same question है. 16 question. A and B is a different question, but C is different. C is not asking average time per unit for 20 units. That is not asking. C is asking what is the time for 20th unit. जब आप 19th के बाद 20th unit बनाओगे, what will be the time for that 20th unit? So A and B calculation is different, but C calculation is different. अगर मेरे को इसमें बोला जाए what is the time for second unit, तो मेरे को सिंपली हो जाएगा, बिकॉज 1 यूनिट टाइम इज 100, 2 यूनिट टाइम इज 100 इंटू 80%, 80, दैट इज नॉट सेकेंड यूनिट टाइम, दैट इज दोनों का एवरेज टाइम पर यूनिट 80. सो 2 इंटू 80, 160 इज द टाइम फॉर 2 यूनिट्स इन टोटल, माइनस टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट 100, सो सेकेंड यूनिट टाइम इज 60 आवर. 80% ये नहीं बोल रहा कि सेकेंड यूनिट का टाइम इज 80% is giving you help that second unit का टाइम क्या है. आपको सेकेंड यूनिट को लेकर टोटल टाइम निकालना होगा एंड सेकेंड यूनिट को छोड़कर टोटल टाइम. सेकेंड यूनिट को लेकर टोटल टाइम 80 इंटू 2, 160. सेकेंड यूनिट को छोड़कर टोटल टाइम इज 100. सो ओनली द टाइम फॉर सेकेंड यूनिट 60. हाउ यू कैन कैलकुलेट? पहले आपको टोटल टाइम 2 का निकालना है, फिर टोटल टाइम 2 को छोड़कर निकालना है. तो 20th यूनिट अगर निकालना है तो क्या करना होगा? टोटल टाइम फॉर 20 यूनिट्स माइनस टोटल टाइम फॉर 19 यूनिट्स. नो शॉर्टकट. टोटल टाइम फॉर 20 यूनिट्स माइनस टोटल टाइम फॉर 19 यूनिट्स. देन ओनली यू विल बी गेटिंग टाइम फॉर 20th यूनिट. टोटल टाइम फॉर 20 यूनिट्स माइनस टोटल टाइम फॉर 19 यूनिट्स. सो देन यू विल गेट द टाइम फॉर 20th यूनिट. कैसे? 20th इज नॉट फॉलिंग इन डबल. इट इज नॉट फॉलिंग इन डबल. तो अब आपको क्या करना होगा? 2 बार एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगाना होगा. A 100 इंटू X 20 टू द पावर माइनस 0.3219. सॉल्व करने से मिलेगा 20 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट. आप उसको इंटू 20 करेंगे तो यू विल गेट टोटल टाइम फॉर 20 यूनिट्स. फिर से कैलकुलेशन करेंगे 20 को छोड़कर 19 यूनिट्स के लिए A 100 आवर इंटू X विच इज 19 टू द पावर माइनस 0.3219. सॉल्व करने से मिलेगा एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 19 यूनिट्स.
एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 19 यूनिट्स, आप इंटू 19 करेंगे तो टोटल टाइम मिलेगा। जो टोटल टाइम 19 का आएगा उसको लेस करना है टोटल टाइम ऑफ 20 यूनिट्स, देन यू विल गेट टाइम फॉर 20th यूनिट। कोई शॉर्टकट नहीं। अगर डबल डबल का भी क्वेश्चन है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला नहीं लगाना है, देन ऑल्सो मान लीजिए दे आर आस्किंग यू टाइम फॉर 17th to 32 यूनिट्स, 17 to 32 is 16 to 32 double. So you will calculate total time for 32 units minus total time for 16 units. Then you will get 17 to 32. But that does not require exponential calculation. Exponential calculation formula लगाना तब जरूरी है when the question is not double double. When the question is double double, it is doing the same only. आप अगर वहां पर भी फॉर्मूला लगाओगे आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा, बट क्यों लगाएंगे? When we know that when the output will be double, average time will be 80%, why I will apply any formula and crack my brain into something which is not required? But this question is what? Revising you the entire learning curve. मैंने पिछले दिन 1.5 घंटे लर्निंग कर्व दिखाया, 1 घंटे क्वेश्चन को थोड़ा देर सॉल्व किए, 5-7 क्वेश्चन जो हम पिछले दिन किए थे वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एसीसीए का है मैं सीमा खोल देता हूं, मैं सीपीए खोल देता हूं, मैं इंडियन सीए फाइनल में लर्निंग कर्व उसका क्वेश्चन खोल देता हूं, गूगल में जाके सब खुल जाएगा, सब भी सेम है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप सीएमए कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या है उसका मतलब समझना, और उसके बेसिस पे किसी भी तरह का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट एक बार समझे तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं समझे तो हर किताब में, हर बुक में, हॉक में, ग्लेन में, कहीं भी जाएंगे सब जगह प्रॉब्लम होएगा। बात समझने की है। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम कौन सा मटेरियल से सम कर रहे हैं, क्वेश्चन ये नहीं है कि एग्जाम में जो आया वो तो बुक से एकदम अलग था। आपको लगता होगा क्योंकि आप बात नहीं सुनेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। कोई बोलेगा वेरिएंस का सम यहां से करेंगे, जहां से करना है भाई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। You want to solve questions from any book in the world, doesn't matter. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बात समझ में आ गई तो सॉल्व सब क्वेश्चन होएगा। Otherwise, how I will be able to teach CIMA also, ACCA also, CPA also, CMA also, taught earlier CA, CWA Indian course also? कैसे? संभव नहीं है ना। कॉमर्स, अकाउंट्स, बिजनेस, फिनेंस वो पढ़ रहे हैं, उसमें अलग अलग कोर्सेज से मतलब नहीं है। लेकिन यूएस कोर्सेज को पास करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू यूके कोर्सेज। पासिंग सीएमए यूएस, पासिंग सीपीए इज डिफिकल्ट, देन पासिंग एसीसीए एंड सीआईएमए। रीजन इज ओनली वन, इफ द एसीसीए और सीमा स्टूडेंट इज टेकिंग द क्लास, they are studying only this PM, only the costing part. They are not studying accounts with that. They are not studying finance with that. उनका सब अलग अलग है। तो एक बार में फोकस एक ही चीज पे करना है, बट आपको एक बार में 6 चीज पे फोकस करना है। अकाउंट्स का भी क्वेश्चन है, कॉस्टिंग भी है, ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल भी है, आईटी भी है। क्या करूं? द पास परसेंटेज इज सीएमए, अर्लियर इट वॉज 50% अप्रॉक्स, now it is 30 to 35%. But in ACCA, CIMA, pass percentage is around 50%. 30-35% is also good. But then exam कितने लोग देते हैं? क्वेश्चन ये है कि हम लोग सब कोई क्लास में अभी हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं क्या समझा रहा हूं नहीं समझ में आए, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, डजेंट मैटर। बट देन वाई वी आर नॉट एबल टू डू? यू विल से दैट सर आई वॉज नॉट देयर इन द क्लास। If you were there in the class, मान लीजिए अमित जी लास्ट क्लास में थे, तो कैन ही से द आंसर? ही कांट से। इफ ही वॉज देयर इन द क्लास, अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो वो आंसर कैसे देंगे? इसमें यह नहीं है कि अमित जी का दिमाग नहीं है, बहुत अच्छा दिमाग है, वेरी गुड ब्रेन ही हैज, बट अपने एफर्ट से पुट नहीं करेंगे तो होएगा कैसे? तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक बात डाल दीजिए, हॉक मटेरियल, इंस्टीट्यूट का डिस्काउंट, सब चीज आपका केवल पैसा जा रहा है। By that you will not be able to pass the exam. By that you will not be able to give the exam. और अगर आपके मन में ये चल रहा है मैं तो बाद में ज्वाइन किया, रोजलिन विल से आई ज्वाइंड लेटर, मैं 50 बार बोला हूं, 500 बार बोलूंगा। अभी तक जो भी ज्वाइन किए हैं, अगर आप मन से पढ़ेंगे, अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा।
बट आपको मैं जो बोल रहा हूं वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे ये सिलेबस है, ये यहां है, ये किताब है, वो ये सब बेकाम का बात है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी क्लास अटेंड करिए, जो मैं करा रहा हूं उसका रिकॉर्डिंग प्रॉपरली करिए, जो कराया जा रहा है उसको फिर से सॉल्व करिए, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन में जाइए। आपका कोई डाउट ही नहीं बचेगा, कोई क्वेश्चन होएगा ही नहीं जो सॉल्व नहीं होएगा। अगर एक क्लास हम लोग वेडनेसडे करते हैं तो सैटरडे तक आपको वो पूरा पढ़ के रेडी रहना है। सैटरडे करते हैं तो वेडनेसडे तक पूरा पढ़ के रेडी रहना है। आप अगर मन में सोच रहे हैं मैं तो अक्टूबर में एग्जाम नहीं दूंगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज अक्टूबर 2023 मतलब कभी नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई भी कोर्स में कोई सीए पढ़ने आया, कोई एसीसीए पढ़ने आया, सीएमए पढ़ने आया, सीपीए, एग्जाम जब है वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो कभी पास नहीं होगा, कभी एग्जाम नहीं देगा। 99% एक्यूरेसी लेवल से मैं बोल रहा हूं। यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर सोच रहा है मैं अक्टूबर में एग्जाम नहीं दूंगा, आपको लग रहा है फरवरी बहुत दूर है, ऐसे ही फरवरी आएगा, आप उस समय इससे और खराब स्थिति में रहोगे, और खराब। आपको तो कोई 5 घंटे नहीं पढ़ने बोल रहा ना, कहां बोल रहे? आपको बोला जा रहा है हर दिन 2 घंटे पढ़ना है। कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूं, अपना बुद्धि से नहीं, वो बहुत कर चुके। क्लास लाइव करिए, नहीं किए रिकॉर्डिंग डबल बार करिए। लाइव का वाला रिकॉर्डिंग, एक बार और रिकॉर्डिंग, डबल बार रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करिए जो क्लास में कराया गया, दूसरा नहीं। वो सॉल्व करने में भी आपको तकलीफ होगा, फिर से ध्यान देंगे, उसके ऊपर नोट्स बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चंस करिए। ये प्रोसेस अब फॉलो करिए। कोई 1-2 बार, कोई 1-2 टॉपिक के लिए समझ में आता है कि नहीं, मैं देखता हूं कैसे नहीं समझ में आता। मेरे को वैसे ही आया, कोई अलग तरह से नहीं आया, दैट्स द सेम थिंग। बट पैसा देने से और क्लास करने से हम एग्जाम पास नहीं होने वाले हैं। यू आर इन्वेस्टिंग इन हॉक, यू आर गिविंग मनी टू मी ऑलरेडी पेड, दिस इज नॉट अ गारंटी फॉर योर पासिंग द एग्जाम, गिविंग द एग्जाम। You need to study the way I am saying, and my guarantee I will make you pass. You need to support me the way I am saying. ये सब बात मत करिए, मेरा ऑफिस था यहां गए, भाई रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? और अगर दिन में आपको 2 घंटा पढ़ने का टाइम नहीं, फिर तो आप गलत एरिया में। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, मनी तो ऑलरेडी मेरे को जो दिए वो गया, अभी टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास 2 घंटे नहीं मिलता है पढ़ने का तो नहीं होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी यू आर मैरिड, मे बी किड्स, मे बी आपका बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलेगा। बट ये रिजल्ट तो तभी मिलेगा ना जब एग्जाम देकर पास होंगे, और वो तभी होगा जब आप रेगुलरली ठीक से पढ़ेंगे। तो पढ़ते बहुत कम लोग हैं। इन द क्लास दीपक अग्रवाल स्टडिंग प्रॉपरली, महफूज रहमान स्टडिंग प्रॉपरली, देन सिमरन स्टडिंग प्रॉपरली। उसके अलावा रोजनाली इज स्टडिंग बट स्टडिंग नॉट प्रॉपरली। उसके अलावा आई विल से दैट वैदेही स्टडिंग बट नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। स्टडी करने का तरीका आपका गलत है, वो गलत तरीका को छोड़िए, फॉलो प्रॉपर। और उसके अलावा लोग पढ़ते ही नहीं है तो उनका क्या होएगा? अंकित जी बोलेंगे सर मैं बाहर था, तो बाहर था तो क्या क्लास करना मना था? क्या रात को सोते नहीं थे? ये सब फालतू बात करके लाभ नहीं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे को आपका पैसा और टाइम बहुत कीमती है आपसे ज्यादा, कि आई हैव एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हेन यू हैव पेड मनी यू शुड बी गेटिंग द रिजल्ट, यू शुड बी पासिंग द एग्जाम्स। और आप बच्चे तो है नहीं, तो आपको तो खुद अपना भला समझ में आता है, तो आप क्यों नहीं पढ़ते? कोई एलाबाई मत दीजिए, मैं बाहर था, ये था। दानिश जी, कोई फायदा नहीं है ये बात करके। आपको टाइम रेगुलरली 2 घंटे निकालना होगा एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम अक्टूबर में देना है, आगे नहीं जाना है। बिकॉज आपको लगेगा मैं फरवरी बहुत दूर नहीं है, बीच में दुर्गा पूजा, दिवाली, देन हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस सब आएगा ना, और प्रॉब्लम होएगा। लगता है ऐसे ही फरवरी, पूरा साल बीत चुका है। ये टाइम विल नेवर स्टॉप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, द टाइम विच वी आर यूजिंग नाउ, वो कभी वापस नहीं आएगा। आपको अभी एग्जाम फॉर्म भरने कौन बोल रहा है? आपको उतना प्रेशर क्यों लेना है? आप चुपचाप से पढ़िए ना, एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम आएगा तब देखेंगे। But if you don't put your efforts, you have discounted in your mind, I will be going in Jan Feb. वो केवल फुतूर है, कुछ नहीं होने वाला है। आप तो सीन ना, ये मान लीजिए 10 साल में कोई 20वां बैच होगा, माने इन एवरी क्वार्टर आई एम टीचिंग 1 बैच फॉर सीएमए, 30th बैच। 30th बैच में मैंने मोटा मोटी आप मान लीजिए हर बैच में इफ यू टेक एवरेज 50 स्टूडेंट्स,
सो 30 इंटू 50, 1500 स्टूडेंट को पढ़ाया गया। 1500 में से एग्जाम कितना लोग दिया है? मैक्सिमम 200 लोग। 1300 कभी एग्जाम ही नहीं दिया, और वो 200 में पास कितना हुआ? मोर देन 90% क्लियर्ड सीएमए यूएस इन वन गो। 10% स्टूडेंट मे बी गिव एन एग्जाम अगेन। समझिए, मतलब पास रेट बहुत अच्छा है। मे बी इट्स अ डिफिकल्ट कोर्स, बट आपको एफर्ट्स पुट करना होगा। 1300 लोगों ने मेरे को पैसा दिया, ना कभी एग्जाम दिए, पैसा वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया। क्या किया जाए उनका? आप उस 1300 में मत जाइए। डोंट गो इनटू दैट, एंड दे नो व्हाट दे मिस्टेक दे हैव डन। एक स्टूडेंट है, करीब 5 साल से बार बार पार्ट 2 ज्वाइन करते हैं, फ्रॉम दुबई ओनली, एवरी 4-5 years से। आई एम सेइंग हिम, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी? अगेन सर, आई विल बी एबल टू डू द लाइव क्लास। यस सर, व्हाई नॉट? वो पे करते हैं, पे करने के बाद फिर वो 1-2 क्लास आते, फिर गायब। एंड 5 साल से उनका एज अराउंड 50 था, 55 तो हो गया। क्या फायदा हो रहा है ये करके? बिकॉज इट इज गिविंग डीमोटिवेशन इन योर माइंड, ब्रेन एंड ऑल दैट। आई एम नॉट एबल टू डू, नॉट दैट यू आर नॉट एबल, आपका फोकस ही नहीं है। पढ़ने से ही कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ करना चाहते हैं उसको करना होगा। दैट शुड बी द मोटिव। आप अगर उसको होगा नहीं होएगा आपके ऊपर है। हर आदमी को अपना काम खुद करना होएगा, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। यू अंडरस्टैंड? सो डोंट से एनी इलॉजिकल थिंग इन मैसेज और मेल, आई एम नॉट वेल एंड ऑल दैट। देयर इज ए स्टूडेंट ज्वाइंड 2 years बैक, सर आई फेस्ड विद दिस दैट्स, जेन्युइन मे बी, लेकिन अब 2 साल से एक बार भी एग्जाम नहीं दिए, और अभी फिर से फर्स्ट 2 क्लासेस में थे, फिर गायब। यानी कि उनका फितुर है उनके दिमाग में, उनका होना ही नहीं है। जब जो होना है तब आप करेंगे, तभी वो होगा, बाद में कभी नहीं होएगा। इफ आई नीड टू फिनिश दिस बैच पार्ट 1 फॉर अक्टूबर एग्जाम प्रॉपरली, आई नीड टू फिनिश इट। लेटर ऑन आई कांट डू। ये समझ लीजिए सब कोई। जब आप डाउट रेस करते हैं तो मेरे को समझ में आता है आप पढ़ रहे कैसे हैं। एक आपका डाउट 1 सेकंड का मेरे को ये फील देता है कि आप डायरेक्शन राइट है कि नहीं। आपका डाउट ऐसा क्यों आ रहा है, इलॉजिकल क्यों है? रीजन एक ही है, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे। और अगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो डाउट आएगा ही कहां से? तब तो और गड़बड़। एग्जाम देने का तो बात ही नहीं आता है। सो नोबडी शुड थिंक वेदर आई विल गिव एग्जाम इन अक्टूबर और फरवरी। बात की बात, आप पढ़िए चुपचाप। डोंट थिंक दैट मैंने तो अभी तक पढ़ाई नहीं की। यार करना भाई, अभी से पढ़ ले यार। सेंटर बेस्ड, इट इज नॉट रिमोट बेस्ड सिटिंग इन होम। पहले 2020-21 में 22 में भी थोड़ा मार्च तक और मई जून तक एग्जाम वाज माने सिटिंग इन होम ऑल्सो, बट 1 साल से बंद है। They said that they will be allowing remote based exam in future again by developing the software. अभी तक तो नहीं चालू किया यार। तो इसमें I am asking this question because यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे अक्टूबर के स्लॉट्स ऑलरेडी खत्म हो गए हैं। मतलब सिर्फ 1 या 2 स्लॉट्स बाकी हैं, एक या 2 दिन के। So that's why I was like, because मेरे को किसी फ्रेंड ने बोला कि स्लॉट्स खत्म हो जाते हैं, ही शोर्ड में कि सिर्फ 2 दिन के स्लॉट बचे हैं अक्टूबर के। नहीं तो इन लोग का एग्जाम रिमोट बेसिस तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि जैसे अभी सैटरडे संडे तो बंद ही है, मंडे को हक खरीदने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सीएमए यूएस से मैक्सिमम ट्यूसडे वेडनेसडे ही कर देंगे। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे आप तुरंत एग्जाम बुक कर सकते हो, तुरंत। ठीक है, मैक्सिमम यू कैन गिव मी टाइम वेडनेसडे, दैट इज एंड ऑफ दिस मंथ, मे बी 30 तारीख 31 तारीख, उस दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो अब उसमें जहां पर भी डेट फेट मिलेगा, मान लीजिए अक्टूबर एंड का नहीं मिल रहा है, अक्टूबर 28 का मिल रहा है, अक्टूबर 15 तारीख का मिल रहा है, थोड़ा बिकॉज अक्टूबर एंड में सभी लोग एग्जाम देना चाहते हैं, यू अंडरस्टैंड, ज्यादा टाइम मिलेगा और पढ़ पाएंगे सारा दुनिया में। तो अक्टूबर एंड का जो स्लॉट है बिटवीन 28 to 30 वो बहुत भर जाता है। और प्रीमेट्रिक सेंटर्स कोई हजारों तो है नहीं, सेंटर्स हर जगह लिमिटेड है। और वो सेंटर्स में एग्जाम और भी अलग अलग कोर्सेज का होता है। प्रीमेट्रिक सेंटर्स एग्जाम्स आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, बिकॉज वो लोग तो रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करेंगे ना। तो इन दैट केस अगर 28 से 30 का स्लॉट बढ़ गया तो मे बी 15 तारीख को एग्जाम देना होगा। थोड़ा मैं 15 तारीख तक सब खत्म कर दूंगा।
इवन दो आई एडवाइज्ड स्टूडेंट शुड बी बुकिंग द एग्जाम एंड ऑफ अक्टूबर, जितना एंड हो सके, बट आपको जो स्लॉट मिलेगा उसको बुक करना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम घर से नहीं है भाई। इंस्टीट्यूट सेड इन द लास्ट ईयर वी विल बी स्टार्टिंग अगेन, बट अभी तक नहीं चालू किया, ठीक है। ओके, थैंक यू। So we will help you to all to register by Wednesday with IMA, and you will be able to book your exam once your registration done next moment. आप तुरंत अपना एग्जाम बुक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिर डेट नहीं होता है। एक बार आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपकी मर्जी आपको कब एग्जाम बुक करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, एक बार लिख के मैं सॉल्व कर रहा हूं सो दैट वी गेट ए बेटर फीलिंग। बट आप सबको समझना है कि क्या मैं सही कर रहा हूं। आपके पैसे देने से आपको कोर्स का डिग्री नहीं मिल रहा है, आपको पढ़ना होगा। क्लास करने से, लाइव क्लास, आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। आपको अपना समय देना होगा और उसको देने का राइट डायरेक्शन चुनना होगा। आप सोचेंगे सर ने तो बता दिया, मैं दूसरा पढ़ता हूं, खाली रीड करता हूं, शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में। जो तरीका सही है वो फॉलो करना है। क्लास लाइव करिए, नहीं किया उसका रिकॉर्डिंग करिए, दोबारा रिकॉर्डिंग करिए, डबल बार रिकॉर्डिंग करने के बाद क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करिए जो क्लास में डिस्कस किया गया, कराया गया। वो होगा नहीं, ये नहीं किया बेवकूफ है, वो एक बार गलत होगा, ध्यान नहीं आएगा। इवन तो आपने 2 बार किया, ध्यान दीजिए, फिर से उसको ठीक करिए, रेक्टिफाई करिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो क्लास में नहीं कराया गया वो 2-4 सॉल्व करिए, वो होंगे। कॉन्फिडेंस आएगा। जब लगेगा कॉन्फिडेंस आ गया, बंद कर दीजिए, वो चैप्टर खत्म, फिनिश। आपको दुनिया में जहां से भी क्वेश्चन करना है तो जब हॉक मटेरियल मिलेगा उसी को खोल के ही कर लेंगे। ये लोग का जो मटेरियल होता है वो सॉफ्टवेयर डिजाइंड होता है, तो उस सॉफ्टवेयर में आपको, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मान लीजिए लर्निंग कर्व का क्वेश्चंस करना है, तो आप पार्ट बी में जाइए, वहां पर लर्निंग कर्व टाइप करिए, तो आपको सारा लर्निंग कर्व का ही क्वेश्चंस दिखेगा। लेकिन क्वेश्चंस मान लीजिए 200 है, 200 क्वेश्चन नहीं करना है, बेवकूफ नहीं बनना है। 15, 20, 25 क्वेश्चन करेंगे, फटाफट हो रहा है, फीलिंग आ रही है, खत्म। लेकिन ये नहीं सर ने तो पढ़ा दिया, सीधा खोल लिया हॉक, दैट्स रॉन्ग। यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यू आर स्टार्ट डूइंग अदर क्वेश्चन दैट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, यू विल डीमोटिवेट योरसेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, डर लगेगा, टेंशन होगा, मत करिए वैसा। पहले चीज को समझिए, देन ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। ऐसा करने से आपको एग्जाम में पास होने से कोई रोक नहीं सकता, गारंटी आप पास होंगे। आप कोई भी बुक से क्वेश्चन करिए, ये करना होगा, चाहे आप अक्टूबर में एग्जाम दे चाहे फरवरी में। और जो भी अभी पढ़ रहे हैं और अक्टूबर में एग्जाम नहीं देंगे, मेरे हिसाब से फरवरी में एग्जाम दे के पास होना मुश्किल है, मेरे हिसाब से। माई एक्सपीरियंस ऑफ 10-12 ईयर्स टीचिंग सीएम में, आप एग्जाम डेफर कर रहे हैं, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। नेक्स्ट बार आपका और खराब प्रिपरेशन होने वाला है, ये मैंने जीवन भर देखा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। नॉट ओनली सीएम में, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए इंटर, सब में ऐसे ही। स्टूडेंट एग्जाम डेफर किया मतलब वो सीरियस नहीं है, उसका नेक्स्ट बार और खराब जाने वाला है। तो चुपचाप से अपने दिमाग में डालिए, ऑप्शन है ही नहीं, एग्जाम अक्टूबर में ही देना है, ऑप्शन है ही नहीं। जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो एक्सरसाइज ही कैसे करेंगे? एक ही ऑप्शन है, एग्जाम अक्टूबर में देना है, बस। ओके, मे बी आई एम हार्श, मे बी आई एम साउटिंग, बट आपके लिए मेरे को दिख रहा है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं है। आपका पैसा और टाइम लगा है, मेरे को बहुत चिंता है कि आपका जो भी रिसोर्सेस लगा है वो पूरा का पूरा 100% आउटकम दे, इसलिए मेरा ही तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना 15 मिनट से। बट कैसे मैं आप लोग को समझाऊं? एक एक जन को तो नहीं बोल सकता ना, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं करता, लाइव भी नहीं करता, उसको कैसे समझाया जाए? इतना सिंपल नहीं है सीएमए यूएस जितना आप सोचते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम दिए हो गया। इट्स डिफिकल्ट टू पास, इट्स नॉट इजी टू पास। ओके, बहुत सारे लोग लाइव सुबह उठ के करने में क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बेस करते समझ में आ रहा है क्या पढ़ाई कर रहे हैं यार, व्हाट वे द स्टडी इज बीइंग डन। एग्जाम पहले दिए, फेल हुए, फिर फेल होने वाले। अब मैं उनको ये थोड़ी ना बोलूंगा फेल होने वाले, यार कैसे उनको करूं? लेकिन दिख रहा है उनका डाउट ये बता रहा है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। द डाउट सेज दैट द स्टूडेंट इज नॉट स्टडिंग द वे आई एम सेइंग। कैसे होएगा? तो मन को बहुत चोट लगती, मेरे को पैसा दिया,
और अभी फिर नहीं होएगा, टेंशन। मेरे को आपसे ज्यादा टेंशन होता है यार कि आपका रिसोर्सेस काम नहीं आया, आपने जो पैसे दिए, जो टाइम दिए, दैट इज नॉट गिविंग यू रिजल्ट्स। इट्स वेरी बैड ऑन माई पार्ट कि आई एम नॉट हेल्पिंग यू टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। दैट मीन्स आई शुड नॉट बी अ टीचर। व्हाई आई एम टीचिंग व्हेन आई कैन नॉट मेक यू पास द एग्जाम? सब चीज साइड में, एक ही चीज, क्या मैंने स्टूडेंट को एग्जाम पास कराया कि नहीं, बस एक ही चीज से मेरा परफॉर्मेंस जज होगा। चाहे इंस्टीट्यूट जज करे, चाहे आप करे, चाहे मैं करूं। तो मेरे को बहुत मन में दुख लगता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। प्लीज ऐसा ना करें, राइट डायरेक्शन में स्टडी करें, आपको कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। चलते हैं। सिंस इट इज, और लास्ट में अगर आपसे ये नहीं हो सकता है तो अभी आप छोड़ दीजिए, जो गया ठीक है, और तो आगे टाइम वेस्ट नहीं करें। बेटर लीव इट, डोंट डू, बिकॉज वैसे भी होना नहीं है तो उस समय डीमोटिवेशन आएगा। इससे बढ़िया यू नीड टू डिस्काउंट कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट स्टडी बिकॉज ऑफ माई वर्क प्रेशर, फैमिली, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन हु कैन स्टडी। ठीक है, छोड़ दीजिए, डू समथिंग एल्स, गिव योर टाइम 6 months, 1 year, 2 year इन समथिंग इन विच यू गेट इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट है, वो करने से कुछ तो मिलेगा, ये तो बर्बाद होने वाला है सब टाइम। तो अगर नहीं हो सकता छोड़ दीजिए, लेकिन अब से कॉल करके, मैसेज करके, मेल में नहीं बोलेंगे आई वॉज आउट, आई कुडेंट स्टडी। नहीं सुनना है मेरे को आपका ये सब, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। दुनिया में सब बिजी है, अगर 5-6 साल का बच्चा लोग वो आप लोग से ज्यादा बिजी है, ये क्लास, वो क्लास, ये वो, हैन तैन सब कुछ। ये तो बात नहीं है ना मैं बिजी हूं, मैं नहीं कर पाया। काम अपना खुद को ही करना है, चाहे आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे, आपका काम कोई नहीं करने वाला है। यू हैव टू सॉल्व योर इश्यूज, नोबडी कैन हेल्प यू, दे आर कंसर्न्ड विथ यू, दे वांट योर डेवलपमेंट, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर ओन एरियाज। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम कंसर्न्ड विथ योर मनी, विथ योर टाइम, फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग दिस। तो ये सब फालतू बात, सर मेरे को बात करना है, सर ये है, कोई फायदा नहीं यार। क्यों आप टाइम अपना और मेरा वेस्ट कर रहे हैं? एक एक कोर्स के अंदर मान लीजिए सीएमए यूएस है, 70-80 स्टूडेंट है जो लोग बैच के अंदर है, हर कोर्स के अंदर अलग अलग स्टूडेंट है, सबका अपना डाउट है, किसी का एग्जाम है, कुछ है, सबको हेल्प करना है ना। लेकिन आपका ये बात सुनकर को तो फायदा नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग टाइम, आई वॉज नॉट एबल टू डू लाइव एंड रिकॉर्डेड। क्यों नहीं किए? कोई अलाबाई नहीं चलेगा उसमें, आप अपना टाइम, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मत करिए। ओके, सिंस इट इज आस्किंग to calculate average time for 16 units which is falling in double calculation, so exponential calculation नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड, काम ही नहीं है। टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट इक्वल्स टू 100 hours, एवरेज टाइम पर यूनिट for 2 units because it is double equals to 100 into 80% equals to 80 hours. Average time per unit for 4 units, average time per units for 4 units, again it is double. तो आपको कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, जो पहले 80 था, 80 इंटू 80% इक्वल्स टू 64 hours। फिर एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 8 units equals to 64 into 80% equals to how much? 6 8 जा 48, 4 8 जा 32, so 51.2 I think, 51.2 hours.
फिर एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 16 यूनिट्स, that is 51.2 into 80%, that you all said 40.96 per unit. ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया. लर्निंग रेट वेदर यू अप्लाई एक्सपोनेंशियल वेदर यू डोंट नीड टू अप्लाई, वो आपको 16th यूनिट का टाइम नहीं दे रहे. लर्निंग रेट इज गिविंग यू एवरेज टाइम फॉर ऑल द यूनिट्स, वेदर यू यूज द फॉर्मूला और डजंट यूज. It is never giving you time of next unit. This is experienced practically for more than 100 years by everybody in the world. So this concept is proven based. It is not a story. ये proven based calculation हो रहा है. बस 80, 90, 65, 70% लर्निंग रेट आपको पता लगाना है. काम में लर्निंग रेट क्या है वो हमारा काम नहीं. हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब लोगों का काम है, वो हमारी बुद्धि के परे है. तो आपको 80% कैसे आएगा नहीं सोचना है, वो दिया रहेगा. देन कम्स बी, एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 25 यूनिट्स विच इज नॉट फॉलिंग इन डबल कैलकुलेशन. वो डबल कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है, 16 के बाद 32 होएगा. We have to use exponential calculation. Exponential use कहां होता है? जहां पर चेंजेस इतना जल्दी जल्दी है कि उसके लिए नॉर्मल कैलकुलेशन संभव नहीं है. यहां पर हर यूनिट का टाइम प्रीवियस यूनिट से कम है. इतना ज्यादा चेंज हो रहा है कि वो नॉर्मल कैलकुलेशन में नहीं समा सकता. अब इतना तो मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं, मेरे को इतना लॉजिक पता है, तो इसीलिए हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं. लेकिन मैं दीपक जी सोच रहा था कि आप नहीं करें, बिकॉज आई नीड टू चेक हाउ मेनी ऑफ द इन द क्लास हैव द कैलकुलेटर. सो दीपक जी आप नहीं बोलेंगे, ओके? सॉरी सर, बिकॉज चेक करना पड़ेगा ना, सबको मोटिवेट, सबको ध्यान देना है कि भाई तुम्हारे को मैं कैसे पढ़ाऊं, ये समझना पड़ेगा. सो वी आर सेइंग y इक्वल्स टू a इंटू एक्स टू दी पावर b. आपको इसको कुछ और तरह से लिखना है, ए बी जेड पी जेड, जो लिखना है लिख लो यार. ABCD का कोई मतलब नहीं है. वैसे ए मतलब मैंने बोला है 100 विच इज टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट. इस क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट का टाइम 100 आवर. कोई भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट यूनिट का टाइम 100 थोड़ी ना होगा, जो होगा. एक्स इज क्यूमुलेटिव यूनिट्स 25, अभी 25 यूनिट का बात हो रहा है. टू दी पावर b. बी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, एग्जाम में दिया रहेगा, मत टेंशन लीजिए. टू दी पावर -0.3219, ये आता है log 80% बाई log 2 से डिवाइड देने से. और कैसे नहीं आता, बस डबल होने से 80% होता है, इसलिए log ऑफ लर्निंग रेट बाई log 2. लेकिन आपको नहीं करना है, दिया रहेगा ये. तो ये सॉल्व करके दीपक जी ने बोला आ रहा है 35.48 आवर्स. ये क्या आया? एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 25 यूनिट्स इक्वल्स टू 35.48 आवर्स. अगर डबल था 16, मेरे को ये करना नहीं पड़ा, बट आंसर वही आ रहा था. 16 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट. 25 डबल में नहीं है, तो वो इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, उसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा. दोनों एक ही क्वेश्चन है, वन विद द फॉर्मूला, वन विदाउट द फॉर्मूला, बट बोथ आर गिविंग यू सेम, बिकॉज लर्निंग रेट विल गिव यू एवरेज टाइम फॉर ऑल द यूनिट्स. दैट्स द लर्निंग कर्व एप्लीकेशन. अब आपको क्या चाहिए? टाइम फॉर 20th यूनिट. टाइम फॉर 20th यूनिट. आपको एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट्स नहीं चाहिए जो ऊपर चाहिए था. अगर 20 यूनिट्स का एवरेज टाइम चाहिए तो यहां 20 लिख देंगे 25 के बदले, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा. लेकिन हमें 20th यूनिट का टाइम चाहिए. दिस इज ओनली पॉसिबल बाय वन वे. टाइम फॉर 20th यूनिट इक्वल्स टू टोटल टाइम फॉर 20
यूनिट्स माइनस टोटल टाइम फॉर 19 यूनिट्स। 20th यूनिट जिसका टाइम चाहिए, अब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेट टाइम फॉर 21 to 30 यूनिट्स, 21 to 50 यूनिट, कुछ भी जिसका टाइम निकालना है उसको लेकर टोटल टाइम, और जिसका टाइम निकालना है उसको छोड़कर टोटल टाइम, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन संभव नहीं। वेदर यू अप्लाई एक्सपोनेंशियल डजंट अप्लाई, बट आपको अगर एक पर्टिकुलर यूनिट पर्टिकुलर बैच का टाइम निकालना है, उसको लेकर टोटल, उसको छोड़कर टोटल। तो 20th मतलब 20 को लेकर टोटल, 20 को छोड़कर टोटल, दैट्स द ओनली वे। तो मेरे को पहले क्या निकालना है, टोटल टाइम फॉर 20 यूनिट्स। उसके लिए फिर से y इक्वल्स टू 100 फॉर फर्स्ट यूनिट, 20 टू द पावर, दीपक जी आप नहीं बोलेंगे, 20 टू द पावर -0.3219, ठीक है, 20 टू द पावर -0.3219। इससे क्या मिलेगा, इससे मेरे को 20 यूनिट्स का टोटल टाइम नहीं मिलेगा। ऊपर क्या मिला था इसको सॉल्व करने से, 25 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट, तो इससे सॉल्व करने से मिलेगा 20 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट, 20 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट। लेकिन मेरे को तो टोटल चाहिए, तो जो 20 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट आएगा इंटू 20, फिर एक बार फिर सॉल्व करेंगे। सो अमित जी इसका वैल्यू क्या आएगा, 20 टू द पावर -0.3219 इंटू 100। अमित जी इसका वैल्यू क्या आएगा, मिस्टर अमित जैन? मिस्टर अमित इसका वैल्यू क्या आएगा, 20 टू द पावर -0.3219। इतना देर से नहीं बोल रहे हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। अमित जी या तो कैलकुलेटर अभी तक खरीदे ही नहीं है, खरीदे है तो क्लास में बैठने के टाइम पे कुछ नहीं पढ़ना है, क्लास में बैठने के टाइम पे फोकस नहीं करना है, तो और प्रॉब्लम है। साइंटिफिक में एरो होता है, दीपक जी कहां पर एरो रहता है इनको बताइए। दीपक जी एरो कहां होता है इनको बताइए, तो अमित जी कैसे पास होएंगे एग्जाम में? सोचिए कि अभी आप क्लास में बोल रहे हैं एरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ पढ़ाई नहीं की लास्ट सैटरडे से, तो आपको कैसे पास कराया जाए, क्या किया जाए आपके लिए? सर ऐसे मत करिए, बिकॉज आपका पैसा टाइम सब वेस्ट हो रहा है ना, और मन में डिमोटिवेशन भी आता है कि भाई मैं ये नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कि आपको बुद्धि नहीं है, आप उसके ऊपर एफर्ट्स नहीं डाल रहे। आ गया, अब कैसे आ गया? पहले नहीं आ रहा था, अब कैसे आ गया? तो वो भी देखा कि कैसे करना है सर। तो यानी कि क्या बात है, इसके लिए बात तो एक ही संभव है ना, कि अपने को अपना टाइम उस पर देना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर मेरे से, अब एक स्टूडेंट है वो सीपीए के लिए कल मटेरियल खरीदा, ठीक है, वो लोग उसको आईडी पासवर्ड दिए, सो वो बोलता है कि मेरे से मटेरियल खुल रहा नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, कोई जगह क्लिक करने बोल रहा होगा, उससे नहीं हो रहा है, उससे नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात सोचिए, मैं नहीं बोल रहा, मेरा टीम मेंबर्स लोग जो एकदम कॉमन आदमी है जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी हंस रहा है कि सर ये क्या, सर क्या है, इसे कैसे पढ़ाएंगे इन लोग को। सो मैं बोला आप ध्यान मत दीजिए, आप उसको हेल्प करिए चुपचाप, कि उससे नहीं खुल रहा है। क्वेश्चन ये है कि सिंपल बातें हमसे नहीं हो रही, क्योंकि हम ये बात को समझते ही नहीं कि एग्जाम में सीधा कैलकुलेटर कैसे यूज होगा। जब अपने रेगुलरली उसको रोजमर्रा की लाइफ में यूज नहीं करेंगे कैसे होगा। तो अपने इस तरह की चीज करेंगे तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्टूडेंट कोई मैसेज करता है, सर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कैसे करना है, मेरा 2 घंटे बाद एग्जाम है, अगर मैं उसको कुछ बोल भी दूंगा तो भी वो कैसे करेगा, होना ही नहीं उसका दिमाग में जो प्रेशर चल रहा है कि मैं यूज कैसे करूंगा, उससे दिमाग एग्जाम में कुछ होना ही नहीं, गारंटी है फेल होने वाला है। मतलब बात पहली क्लास से जो हो रही है हम लोग उसको मानते ही नहीं है। ठीक है, सॉल्व करके आया 38.123। आपको नॉर्मली केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है,
hours. So total hours for 20 units equals to, कोई नहीं बोलेगा, जिसको मैं पूछूंगा वही बोलेगा. That's my request. 38 into 0.12. अंकित जी क्या वैल्यू आएगी? 20 into 38.12. अंकित श्रीवास. 762.4. 762.4. सर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है? सर BA2 प्लस कैलकुलेटर. हाँ वही चलेगा यार. तो BA2 प्लस कैलकुलेटर या कोई भी हो, ये तो किसी में भी निकलेगा, इसमें तो कोई हाथी घोड़ा है नहीं. इनटू करना है, यानी कि ये कैलकुलेशन हम नॉर्मल में भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपना हैबिट अगर साइंटिफिक BA2 प्लस या कोई में भी बनाएंगे बेटर रहेगा, बिकॉज आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगा उसका. और आप अगर कभी यूज नहीं किए या 5 साल पहले यूज किए थे तो वो एग्जाम में सीधा सीधे यूज नहीं हो पाएगा. बटन से फीलिंग होना चाहिए किस पे क्या करना है, क्या दबाना है. उसके लिए किसी को कुछ नहीं सिखाना है दुनिया में. जब हम लोग मोबाइल फोन, एंड्रॉयड या कोई भी एप्पल का फोन चलाते हैं, किसी से पूछते हैं क्या? वो तो बहुत हाई लेवल है एज कंपेयर टू कैलकुलेटर सीखना, बट हम उस पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं और हम अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं. तो हमारे को पैसा देकर आपका कुछ नहीं होना है, वो तो ऑलरेडी वेस्ट हो ही गया, और आगे एग्जाम देंगे नहीं देंगे वो और वेस्टेज. नहीं करना है ऐसा. रिक्वेस्ट है आप लोगों से. नाउ टोटल टाइम फॉर 19 यूनिट्स. टोटल टाइम फॉर 19 यूनिट्स. फिर से y इक्वल्स टू, अब की बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, 100 इंटू 19 टू द पावर -0.3219. अंकित जी आप ही बोलिए क्या आएगा ये सॉल्व करके. अंकित श्रीवास, सॉल्व करके कितनी वैल्यू आएगी? सर 38.75. क्या ये सही मान लें? अदर्स देखिए एक बात समझिए, 19 का जो एवरेज टाइम है वो 20 का एवरेज टाइम से ज्यादा रहेगा, क्योंकि 20 का एवरेज टाइम में 20th यूनिट का टाइम जोड़कर एवरेज निकला है, और 20th यूनिट का टाइम 19 यूनिट्स का टाइम से कम है. हर एक नेक्स्ट यूनिट का टाइम पुराने वाले से कम है. अगर मैं बोलूंगा एक स्टूडेंट ने एग्जाम में 400 नंबर लाए और दूसरे स्टूडेंट ने 380 लाए, दोनों का एवरेज 400 प्लस 380 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी लेस देन 400. फिर तीसरा स्टूडेंट ने 370 स्कोर किया, सो 400 प्लस 380 प्लस 370 डिवाइडेड बाई 3, वो जो एवरेज आएगा वो पहले से कम आएगा, बिकॉज आपका नया डेटा का फिगर कम है. ये सिंपल, इसमें कोई बुद्धि नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स. तो हर एक नेक्स्ट यूनिट का टाइम पुराने वाले से कम है, तो जब आप एवरेज निकालेंगे नए को लेकर कम आएगा. तो 32.12 से 32.75 ज्यादा आना पड़ेगा, बिकॉज 20 यूनिट्स का एवरेज टाइम शुड बी लोअर देन 19 यूनिट्स का एवरेज टाइम, और बहुत ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए, बिकॉज हर नेक्स्ट यूनिट के ऊपर टाइम को बहुत जोर का नहीं बच रहा है. शुरू में 100 के बदले 60 हुआ, बाद में उतना जोर का नहीं बच रहा है. जब आप एक ही काम बार बार करेंगे तो आप कितना टाइम गिरा देंगे? थोड़ी ना आप उसको फ्री में बगैर टाइम कर लेंगे. रेड्यूसिंग बैलेंस का मतलब शुरू में गिरावट जोर से, लेकिन बाद में गिरावट हौले हौले धीरे धीरे. जब हम लोग डेप्रिसिएशन में रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड करते हैं, आप एक बार कोई एसेट्स का 1 लाख कॉस्ट लीजिए, 20% डेप्रिसिएशन 5 साल का निकालिए. पहला, दूसरा, तीसरा साल जितना डेप्रिसिएशन आएगा, चौथा और पांचवा थोड़ा सा ही कम होगा, बहुत जोर का कम नहीं होएगा. ये रेड्यूसिंग बैलेंस का रूल है, ये रेड्यूसिंग बैलेंस ही चल रहा है. तो मेरे को मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट करेक्ट है कि नहीं, लेकिन मेरे को फीलिंग आ रहा है कि ये सही है, इसीलिए मैंने लिखने के पहले किसी से पूछा नहीं, बिकॉज आई नो दिस इज करेक्ट. बिकॉज ये मेरे को खाली कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, ये दिमाग में पूरा तरह से चीज सज गया है, समझ में आ गया है. तो अगर कैलकुलेशन कुछ गलत कैलकुलेटर भी करेगा मेरे को समझ में आ जाएगा. मान लीजिए अभी इन्होंने बोला होता 38.1, मैं लिखता नहीं, बिकॉज 19 का एवरेज टाइम 20 का एवरेज टाइम से ज्यादा होगा, मेरे को मालूम है पहले से. तो जब आप कैलकुलेटर में कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिमाग को जिंदा रखिए. नॉट दैट कैलकुलेटर 2 into 2 5 बोल रहा है आप लिख देंगे. योर ब्रेन शुड बी वर्किंग एवरी सेकेंड.
कि कैलकुलेटर से जो है लिखना नहीं है, देखते रहना है। बिकॉज हो सकता है आपने कोई बटन गलत दबा दिया, कोई फिगर आपने गलत प्रेस कर दिया, तो वो जो फिगर देगा आप उसको गलत मान पाएंगे। वो पढ़ के ही जब फोकस में पढ़ते हैं तभी होता है, नहीं तो होता नहीं है। नहीं तो कैलकुलेटर में कुछ भी आया आंसर नहीं मानना है ऐसे। सो टोटल टाइम फॉर 19 यूनिट्स, 19 into 38.75, वैदेही कितना आएगा ये 19 into 38.75? 736.75, 736.75 आवर्स। ठीक है, नो पॉइंट, कोई प्रॉब्लम है, भूल के आप बोल दिए, मैं जानता हूं। यहां पर मैंने एक्सपोनेंशियल से किया है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता कैलकुलेट टोटल टाइम फॉर 17th to 32 यूनिट्स, सो मैं ये एक्सपोनेंशियल नहीं करता। मैंने ऊपर 16 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट निकाला है। 16 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट 40.96। अगर फिर से ये 16 के बदले 32 डबल होता है तो 40.96 इंटू 80%। आप अगर ये 16 यहां पर पुट करोगे, यहां 16 सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करके 40.96 से मिलेगा। लेकिन डबल होने से फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल का लगाना जरूरी नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। तो अगर 32 यूनिट्स का निकालते तो 40.96 इंटू 80% होता। अब 16 यूनिट्स का टोटल टाइम 16 इंटू 40.96, 30 यूनिट्स का टोटल टाइम 32 इंटू जो भी आता, माइनस करते तो क्या आता 17 टू 32। यानी कि ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ये ऐसा मत सोचिए एक्सपोनेंशियल लगाना है, आपको जिसका टाइम निकालना है उसको लेकर टोटल और उसको छोड़कर टोटल, तभी आपको उसका टाइम मिलेगा। एक्सपोनेंशियल का जरूरत है कि नहीं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेदर इट इज विद इन डबल और विदाउट डबल। ये विदाउट डबल है तो मेरे को एक्सपोनेंशियल के बगैर कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूं। तो अब अपने को मिलेगा टाइम फॉर 28th यूनिट, टाइम फॉर 28th यूनिट। तो हमने 20 यूनिट्स का टोटल टाइम निकाला 762.4 और 19 का निकाला 736.25। तो 762.4 माइनस, कोई भी नहीं बोलेगा, जिसको मैं पूछूंगा वही बोलेगा। 762.4 माइनस 736.25, 736.25 equals to Rosalind, what will be the answer? 26.15 hours, 26.15 hours। ये 28th यूनिट का टाइम है। जो फर्स्ट यूनिट का टाइम था वो 100 घंटे 100 आवर, और जो 20th यूनिट का टाइम है वो 26.15। केवल 80% लर्निंग रेट होने से कितना जोर का गिरावट है। लेकिन ये जो रिडक्शन है, ये फर्स्ट यूनिट का 100 था, दूसरे का 60 था, बिकॉज 80 इंटू 2 160 माइनस 100, यानी कि फर्स्ट से सेकेंड यूनिट में 40 घंटे कम लगा। लेकिन 60 से जब आप तीसरा यूनिट बनाएंगे तो 40 घंटा कम नहीं होगा, कम होगा। ऐसे करके हर नेक्स्ट यूनिट पे टाइम का रिडक्शन कम होते जा रहा है। इसका मतलब जन्म भर कोई कम नहीं होएगा। मान लीजिए आपने 200 यूनिट बनाया तो 200 यूनिट का टाइम है मान लीजिए 15 घंटे। मान लीजिए 200 यूनिट का टाइम 200 आवर, और 201 यूनिट का टाइम 199.989898, मान लीजिए ऐसा आया। 200th यूनिट का टाइम 15 घंटे और 201 नंबर यूनिट का टाइम 199.989898 ऐसा। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि अब टाइम कम नहीं होगा, हो गया खत्म। जब 200 के बदले इट इज कमिंग 199.9898, तो वो तो कोई कम नहीं है। तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं
अब हम वो कंडीशन में पहुंच चुके जहां समय कम होना बंद, अब और कमती समय नहीं होएगा। यानी कि जो टाइम 200 या 201 नंबर का है वही टाइम आगे सबका रहेगा। वो वाला टाइम निकाल कर सारा बजट बनाया जाता है कि हम इतना यूनिट बनाएंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, क्या सेल होगा, फायदा क्या होगा। हम अगर उतना टाइम में प्रोडक्ट बनाएंगे तो स्टैंडर्ड सेट करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, मतलब उसी से सारा जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसी से होगा। बस किसी को बताना होगा कि आपके काम में लर्निंग रेट क्या है। या तो कोई इंजीनियर, कोई प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा, नहीं बताएगा कोई नहीं है, आप ही बुद्धि लगाइए जितना आपके दिमाग में है। मान लीजिए मैं अपने लिए बोलता हूं, मैं लर्निंग रेट पढ़ाने में उस कंडीशन में पहुंच चुका हूं कि मेरे को लर्निंग कर्व पढ़ाने में, लर्निंग रेट पढ़ाने में, लर्निंग कॉन्सेप्ट पढ़ाने में टाइम अब और कम नहीं होएगा, वैसे ही रहेगा। कोई हो सकता है कि 10-20 सेकंड, 50 सेकंड कमती बेसी लगता होएगा, तेल लेने गया, बिकॉज इतना हजारों बार पढ़ा चुका हूं कि नाउ द कॉन्सेप्ट को और जल्दी बताना मुश्किल है। लेकिन जब मैं हर बार पढ़ा रहा हूं, हर समय यह सोचकर आपको कुछ नहीं आता है, हर समय यह सोचकर, बशर्ते आप मेरे को सपोर्ट करें। आप ये सब ना सोचे, ये किताब, ये क्वेश्चन, ये यहां, अरे भाई सब वही है यार। एक बार बात तो मान लो, एक बार तो जीवन में मानो। अब है, मान लीजिए दीपक जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कोई फायदा हुआ? एनी गेन यू गॉट? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्लास में लॉजिकली बोलना है, जानबूझ के नहीं सर। लॉजिकली मेरा पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, उसका जितना भी इतने पढ़ाया। अच्छा, 2 घंटा पूरा, बिकॉज़ दिस कवर्स एवरीथिंग। अच्छा, बट अगर मैं ये नहीं कराता तो भी आपको चलता? नहीं, हाँ वही बोल रहा हूं कि सपोज यू आर इन अ क्लास एट अ लेवल वेयर इफ आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन then also it's not a problem for you, reason being that you are fully ready in the class. Okay, now मान लीजिए हम लोग बात करते हैं रोजलिन, either there any advantage of doing this question in the class? रोजलिन, you say what is the advantage? क्या फायदा हुआ आपको? सर लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ी थी, मतलब लाइव क्लास में जो मुझे सीखने को मिला वो रिवाइज हो गया, क्योंकि मैं पार्ट्स ही पढ़ रही थी लास्ट क्लास से। तो आप कुछ पढ़ नहीं पाए थे अभी तक, है ना? ठीक है, ओके। नाउ अब क्लास अंडरस्टूड। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोग सबको ये बताऊंगा अभी। नाउ अंकित जी एंड मोहम्मद दानिश, एनीवन, आप लोग तो लास्ट क्लास में नहीं थे, आप अपने आप पढ़े भी नहीं है, रिकॉर्डिंग भी नहीं किए, आपको ये क्वेश्चन करा के कोई फायदा हुआ? सर मैं तो रिकॉर्डिंग किया सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अभी नहीं हुआ? हुआ सर। मोहम्मद दानिश, आपका हुआ? कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर नहीं हुआ सर, लेकिन अच्छा, हाँ कुछ चीजें समझ में आने लग गई हैं कि हाँ, अच्छा, किस तरह हो रहा है। ठीक है, वो मैं रिकॉर्डिंग एक बार करूंगा तो ठीक है, इंशाल्लाह आएगा वो। थैंक यू सर, इंशाअल्लाह जरूर आएगा। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए अंकित जी ने बोला कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, या आपने बोला सर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप लोग दोनों क्लास में नए हैं, इवन दो पहले से हैं बट क्लास नहीं कर पाए थे, आपके लिए नया है। मान लीजिए आज कोई स्टूडेंट क्लास में नया आता, आज कोई नया नहीं है कि भाई कल ही ज्वाइन करता, आज क्लास में नया आता, तो उसका भी तो कंडीशन मोहम्मद दानिश और अंकित श्रीवास जैसा ही होता। या मान लीजिए क्लास में रोजलिन है जो पिछले क्लास में पढ़े थे लेकिन वो अपने से नहीं पढ़ पाए, उनका कंडीशन और मोहम्मद दानिश या अंकित का कंडीशन अलग नहीं है। या मान लीजिए क्लास में वैदेही और सिमरन है जो लोग पढ़े हैं लेकिन उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू दीपक जी कम है। या मान लीजिए क्लास के अंदर दीपक है या महफूजर है, बिकॉज ये लोग दोनों थोड़ा ज्यादा अच्छे पढ़ रहे हैं, एकदम टोज में हैं, एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्लास करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। मैं नहीं बोल रहा वैदेही एंड सिमरन यू बोथ आर नॉट डूइंग,
बट ये लोग आप लोग से थोड़ा बेटर तरीके से पढ़ रहे हैं। अपना पर्पस क्या है? क्लास में सबको क्लास करके फायदा हो, कि मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आपको अपने तरफ से कम पढ़ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीपक को अगर सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है, इसका एक ही रीजन है, वो क्लास के बाद क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पढ़े हैं, और मान लीजिए अच्छे से पढ़े। कोई है जो क्लास के बाद नहीं पढ़ा, कोई है जो क्लास नहीं किया, लेकिन सबके लिए समझ में आएगा। तो कभी ये मत बोलिए सर मैं तो 4 क्लास नहीं था, मैं हूं ना, जिंदा मैं हूं। लेकिन अब इसको हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े उसको फिर से तो नहीं पढ़ सकते ना। और अगर आप पिछले क्लास में थे भी और आप वहां से अगर चालू नहीं करोगे, मान लीजिए अंकित जी ने बोला सर समझ में आया, ये समझने के बाद आप सोचोगे सीधा दूसरा क्वेश्चन करेंगे, गलत कर रहे हो, डूइंग रॉन्ग। प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग निकालिए, उसको करिए, उसके क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करिए जो क्लास में कराया गया रिकॉर्डिंग करने के बाद, इसको फिर से करिए, रिकॉर्डिंग करिए, फिर नया में जाइए, आपका कोई डाउट ही नहीं आएगा। बिकॉज इसके अलावा तो टॉपिक में कुछ है ही नहीं, है कहां से और क्या। सबको समझ में आएगा, सबका फायदा होगा, सबका साथ देखना है, मोदी जी वाला सबका विकास वही चल रहा है। ये सब बात मत करिए मैं तो 4 क्लास नहीं था, समझ में आएगा कि नहीं। अरे हम हैं भाई, हो सकता है आपके लिए पहली क्लास से थोड़ा कम आएगा, समझ में तो आएगा ही। आप दीपक जी जैसे पढ़ेंगे बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दीपक जी में कोई ब्रेन ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे में ब्रेन दीपक जी से ज्यादा है। मैं ये चीज को हजारों बार पढ़ा हूं, दीपक जी 2 बार 3 बार 4 बार पढ़े हैं, रोजलानी ने केवल क्लास में 1 बार। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डजंट मैटर व्हाट टाइप ऑफ ब्रेन यू हैव। दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है, ना अंकित, ना अमित, ना महफूजर, ना मोहम्मद, कोई भी जन, सब बुद्धिमान है। बस एफर्ट्स कौन पुट कर रहे हैं और कैसे पुट कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका सक्सेस और फेलियर कायम है। इससे कोई मतलब नहीं आपका दिमाग खराब है, आप 5-7 साल से पढ़ाई नहीं कर रहे। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट लोग आता है, मैं क्या बोलता हूं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 साल नहीं पढ़े हैं, आपको सब समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को सर की बात माननी है, मेरे को अपना ग्रोथ करना है, मेरे को लाइफ में आगे जाना है। मैं अगर सर की बात मानूंगा मेरे को टेंशन नहीं होएगा। बस इतना ही मेरे को बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। आप क्लास जब कर सकते हैं करिए, क्लास आप लोग के लिए अलग अलग टाइम पे डिजाइन किया गया है, जब आप कर सकते हैं। स्टूडेंट लोग दूसरा बैच के लिए बोलता है सर हमें सैटरडे पढ़ाइए ना। अब मैं सब बैच को सैटरडे कैसे पढ़ाऊं, लेकिन मैंने कभी सैटरडे का बैच सीएमए यूएस का चेंज नहीं किया। तो सारे स्टूडेंट क्यों लाइव नहीं है? स्टूडेंट तो बोलते हैं ना सर सैटरडे संडे पढ़ाइए। सर सैटरडे संडे लाइव और कम है, पहला दूसरा तीसरा क्लास का बात अलग है, बाद में सब गायब है। एंड इफ आई एम टेकिंग द क्लास ऑन वीकडेज, द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट इज मच हायर, बिकॉज वीकडेज को आपका ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उठना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो वीकडेज को जब मैं क्लास लेता हूं मंडे टू फ्राइडे, मॉर्निंग में स्टूडेंट्स लोग ज्यादा क्लास करते हैं सैटरडे से ज्यादा, जबकि हम सोचते हैं कि ऑफिस का हॉलीडे है। बस वो दिमाग का फितुर है, बस जो करना है सो करना है, जीवन में ये सोचना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और मैं लर्निंग कर्व का क्वेश्चन में नहीं जा रहा, मैं और आगे बढ़ना चाह रहा हूं। डू एनीबडी हैज एनी स्पेसिफिक क्वेरी? चाहे लर्निंग कर्व या कोई भी जगह से कुछ पूछना है, बोलिए वैदेही। तो आगे बढ़ते हैं अब, बिकॉज ऐसे ही बार बार क्वेश्चन करते जाएंगे, इट्स द सेम स्टोरी। If you know whatever we have discussed in the class, you solve those questions in writing, not on pen and paper, on screen. अच्छा, एक बात और लास्ट में, मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, केवल पॉइंट सी नंबर, ये जहां से मैंने चालू किया, ये यहां से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? अगर इतना लिखेंगे तब तो इस जन्म में पास हो लिए, तब तो इस जन्म में अपने एग्जाम देकर पास नहीं हो सकते। मान लीजिए क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के अंदर है, आपको कम से कम लिखना है, सारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करिए। होगा कि आप लिखेंगे भी तो कैलकुलेटर में यही तो करेंगे ना, और इसको इंटू 20 करके जो आया वो आप
एक जगह लिख लीजिए. इफ यू आर गिविंग एग्जाम, कोई पेन पेपर या कोई स्लेट वो लोग देगा, वहां पर ये 762 लिख दीजिए. फिर उसके बाद ये दूसरा कैलकुलेशन करिए. ये कैलकुलेटर में आएगा, इसको लिखना नहीं है, इसमें से ये माइनस करिए, निगेटिव आएगा, आपका आंसर पॉजिटिव है. बस. आप सोचेंगे बहुत लेंदी है. लेंदी नहीं है. सॉल्व करने के लिए 2 मिनट ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए. लेकिन आप सोचेंगे हम सब लिखेंगे, तो मैं ऐसे बार बार क्या लिखूं हर क्वेश्चन में? व्हाट आई विल राइट अगेन एंड अगेन. कोई क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आप बोलेंगे सर इसको लिखा नहीं, उसमें वही कॉन्सेप्ट है. आप क्लास रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, आप रिकॉर्डिंग के बाद उसको खुद से सॉल्व नहीं कर रहे, इसलिए आपको लग रहा है सर लिखे नहीं. बार बार 2 और 2 4 क्या लिखें? हर क्वेश्चन के अंदर फिगर्स अलग रहेगा, आपसे ये नहीं बनता है, दूसरा भी नहीं बनेगा. इस पे ध्यान दीजिए ना पहले. तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज को मत लिखिए. शुरू में चीज समझना है तब लिखिए. जब आपको समझ में आ गया, आप लिखना बंद. जस्ट ऑन द कैलकुलेटर, so that in the exam, in the given time, you can solve the problem. Otherwise, time आपके पास बहुत कम रहेगा. समय पे भी ध्यान देना है to pass the exam. If I am there in the exam hall, I will be writing just this, nothing else. तो मैं ऊपर, मेरे को पता है 20 का निकालना है, मैं तो फटाफट 100 into 20 to the power minus 0.3219, the whole thing into 20 करके निकाल लूंगा, लिख दूंगा. फिर उसके बाद दूसरा 100 into 19 to the power minus 0.3219, the whole thing into 19 आ गया, उसमें से minus 762, आंसर फिनिश, बस. दूसरा जन सोचते रहेगा, उतना देर में तो मैं करके आगे निकल गया. वैसा ही स्पीड होना पड़ेगा. नॉट इन दिस चैप्टर, एवरी चैप्टर. जितना कमती लिखेंगे उतना आप एग्जाम में पास होने लायक बन रहे. आप अगर ये बोलेंगे सर इतना बड़ा आएगा, सर ये इतना बड़ा क्या है, क्या होगा लिख के? 20 यूनिट्स का टाइम, क्या लिखेंगे? और अगर पार्ट सी में है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर है, थोड़ा बहुत लिखना है. इतना कहानी नहीं लिखना है भाई, इतना समय नहीं है कि सब कुछ लिखेंगे. चाहे ऐसे टाइप हो, लिख कर करना है, चाहे और कम लिखना है. लिखना कम. ऑन कैलकुलेटर, यानी कि क्लास में बैठने के टाइम पे अगर आपके सामने कैलकुलेटर नहीं है, आप बर्बाद कर रहे हैं क्लास को. क्लास में बैठने के टाइम पे रेडी विद द कैलकुलेटर. सर कुछ भी पूछेंगे, पूछने का जरूरत नहीं, सब कोई टाइप करने लग गए. केवल दीपक जी नहीं, एवरीबडी. 100 into 9 2 to the power minus 0.3219, सब कोई टाइप करके. इसका मतलब आप फोकस कर रहे हैं. पूरा 3 घंटा जी जान से दीजिए. ये नहीं कि दीपक जी बोलेगा सब देख लिए हो गया, नॉट. या मैं पूछूंगा सब एक ही साथ क्यों नहीं लिखते हैं? बी एनर्जेटिक इन द क्लास विथ फुल एनर्जी. मैं तो नहीं बोल रहा आप अपना वीडियो चालू करिए, आप जो भी अटायर में हैं, लेकिन दिमाग यहां दीजिए. ये 2.5-3 घंटे पूरा अपना जिंदगी का अच्छे से पढ़िए. तो जब आप खुद पढ़ेंगे कमती समय लगेगा, जल्दी से होएगा. हर चीज का फोकस का बात है यार. फोकस आपको बरकरार रखना है. ये सब बात मैं क्यों बोल रहा हूं? जिससे कि आपके किसी के भी मन में ऐसा लगता है ना कि वैदेही को लगेगा मेरे को तो देरी से समझ में आता है. कोई नहीं, वैदेही आप दीपक जी से ज्यादा बेटर है. आप तो उनसे ज्यादा पढ़ते हैं. अपना फोकस लाइए. मेरा लड़का है, उसको पढ़ने में मन नहीं करता है, 10 साल का है, 10 years आई ऑलवेज से. मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहे, तो मैं बोलता हूं तुम्हारे पास टाइम है ना, तुमको तो ये फोकस नहीं है कि 1.5 घंटा बाद ये करना है, 2 घंटे. तुम फोकस लाओ, ध्यान दो. वो सुनता नहीं है कि आप सोचो कि 1 घंटा में उसका पढ़ाई 1 घंटा में खत्म हो जाना चाहिए. उसको 23 घंटा खेलना है, सोना है. 1 घंटा से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए. बट उसको लगता है 1 घंटा नहीं हुआ, 1.5 घंटा ये कर रहे हैं, यहां मोबाइल खोल लिए, यहां टीवी खोल लिए, यहां मैसी को देख रहे हैं. अरे यार ऐसे थोड़ी ना होएगा. फोकस कहां है आपका? ये चीज मेरे को 1 घंटा में खत्म करना है, इसके बाद मेरा दूसरा काम है. अगर आप खाली हैं, केवल स्टूडेंट हैं, अपने जीवन में अपना बिजनेस क्रिएट करिए. और अगर आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे जो, तो टाइम तो आपके पास वैसे भी नहीं है. आपका तो फोकस होना ही पड़ेगा. समय कम होगा तो फोकस बढ़ेगा, समय ज्यादा है तो फोकस खराब होगा. अगर आप वैदेही हैं, सिमरन है, 12 पास आउट है, अंडर ग्रेजुएट है, हर समय आपका दिन में होना चाहिए अभी ये अभी ये अभी ये, बस उतना ही टाइम है. जब टाइम कम होगा इफिशियंसी बढ़ेगा. जब टाइम ज्यादा होगा इफिशियंसी नहीं बढ़ सकता. आपको तो लगेगा बहुत टाइम है, सुबह से सैटरडे है, सुबह से पढ़ेंगे. काहे को सुबह से पढ़ेंगे? बस 2 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, खेलेंगे, मजा करेंगे. दुनिया को लगेगा करता क्या, और यहां पर आप लाएंगे रैंक.
मजा तो उस बात में है ना, मजा इसमें थोड़ी ना है कि हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं और फिर भी फेल हो गए। दैट्स नॉट डन। अच्छे से पढ़ाई करने के लिए 2 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल बंद, रूम बंद, फुल फोकस। दैट कैन बी पॉसिबल ओनली 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 o'clock इन द मॉर्निंग और इन द नाइट 11 PM। कोई मैसेज करेगा ही नहीं, किसको, सब सो रहा है। फोकस बनाइए अपना। हम तो सुबह 4 बजे उठकर ही पढ़ते हैं सर, 4 साढ़े 4 उठे, जो पढ़ना है दिन का पढ़ाई पहले ही कर लिए, अब हो गया। अब जिसका जो मेरे को डिस्टर्ब करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। कर मेरा लड़का बोल रहा है सोने के टाइम पे, माय सन वाज सेइंग, आप पापा कितना दिन से सुबह 4 बजे 5 बजे उठता है, कितना दिन से? हम बोला जीवन भर से यार, पहले फिजिकल क्लास होती थी तो भी 7 बजे सेंटर में जाके पढ़ाना है। बोलता है कि कल जब आप स्टूडेंट लोग के घर पे जाकर पढ़ाते थे तब तो भी 7 बजे पढ़ के पढ़ाते थे, जाके पहुंचते थे। बोलेगा आप, मैं महान की बात नहीं कर रहा, अपना काम समय पे करना, इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आपको सोचना होगा मेरे को मन से 2 घंटा कब मिलेगा। फोकस करिए अपने जीवन में। सुबह से रात तक नहीं पढ़ना है, दुनिया बुर्बक बोलेगी, बस फोकस के साथ 2 घंटे दिन में देना है, नथिंग एल्स। और चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कंपनी का CFO है, 2 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप मैरिड है, चाहे बच्चा है, कोई भी है, 2 घंटा अपने लिए निकालिए उस समय जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मन से कैलकुलेटर के साथ कैसे वैसे पढ़िए, देखिए कितना मजा आएगा। 5 दिन में आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। विद इन 5 days योर होल लाइफ विल चेंज। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट बी, मेरे ख्याल से ये 5th नंबर क्लास चल रही है। जब मैंने पार्ट बी पढ़ाना चालू किया था